कुछ होने में और बहुत कुछ होने में इतना सा फर्क है, एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने रिकॉर्डिंग वाला है? में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ, मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ, मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to each and everyone who have joined us today for our 310th edition of Business Opportunity Over Chai. The brand which we have brought today is a trusted name since 1989, engaged in retail chain of exclusive dry fruit showroom. Now, with this, I would like to invite the Franchise India management team, Mr. Gaurav Maria and Sonia Chaudhary, to formally start the session and give us a brief about business advantage. Over to you, Sonia ma'am. Thank you, and a very good morning to all of you friends who have joined in today. And I also welcome our brand of the day and Atulji for coming in presenting the opportunity for the Monday morning business opportunity over chai. And before we formally invite, I'll maybe spend a minute on the Investor Advantage program that you all see on your screen. And this is the program that we have started and where we help prospective business buyers in guiding, advising them, and giving them personalized solutions of helping them buying a business opportunity based on the fitment, where we take into consideration the 5 tools at Franchise India, which includes your self-assessment. We take into consideration the industry assessment. We take into consideration the competition, market assessment, and overall, I would say, a competitive landscape where we work with you in doing a peer-to-peer brand assessment. So these are 5 assessment tools where we work with each investor. And this program is a 6-month program, which can be extended to about 12 months, depending on the nature of the business and the investment one wants to make. And apart from the teams which are working at all the top 10 cities in India, we also have a big team of independent franchise consultants which work in over 85 cities with us, who will work with each investor in being advised on the opportunity that they would like to seek. And I will also, like to mention, apart from the Investor Advantage program, recently, about 2 days back, we've also started an initiative where we will have maybe a half an hour slot or a 15-20 minute slot with each investor. And these would be no obligation meetings for registrations. Anybody who wants to reach out to us and they want our advice on what they can buy, businesses, if they've already selected, they need a second opinion, so we can work with all of you who needs any kind of advisory. And I will now request Mr. Maria also to maybe give his perspective on this program and also some of the other events that we do every day.
Thank you, Sonia, and welcome, friends, and welcome to another edition with Franchise India. Am I clear? Yes, yes, we can hear you. So this is a series which is going on for last now over 1 year, and very successful series. And Sonia herself has done about 365 presentations in last 365 days. Almost every day she was there. I missed few, and that's it's been a very successful. We were able to engage over 500,000 investors, which not only came and benefited in terms of what is the right opportunity for them, and they were able to really explore multiple categories, multiple industries. And you can all visit all these 600 odd webinars which we have posted on our Facebook group. So go on Franchise India Brands Facebook page, and you can actually scroll, and there's so many videos and so many opportunities which are there, and all unique, about 600 different unique brands which are listed there. This is probably the world's biggest library for franchise opportunities. There is nothing like that which is available. You should also visit regularly franchiseindia.com, where we list all the brands. Again, franchiseindia.com is number one visited site for franchising in the world. As Sonia mentioned, we have started a special program which is called Business Consultation for 30 minutes. These are special initiative which we have taken because we did a survey on a lot of investors, and we found that all the investors have a few things in common. They all are at this stage a little bit confused what they should do. They're all looking for businesses which don't have too much of risk, and has businesses which have certain amount of predictability, businesses which you can really see next 3 to 4 years of predictability. Also businesses which are not operationally challenged, because a lot of people don't want to take too much of operational challenged businesses. And finally, they are looking for businesses which are backed by a strong brand. And when I say strong brand, it's not just about that this has to be a large corporate brand. It can be also a very established, seasoned brand, like one of the opportunities we're going to present to you today. It's also an entrepreneur's experience which runs for many years in a particular category, which also brings in a huge amount of credibility. So people are looking for credible businesses. They want to see the legacy of a business, businesses which would have all these 5 factors. So we have started a program where we do a 30-minute slot. Now, this 30-minute slot is absolutely free for you. Over 90 people have already applied in last two days since we've started. And so now I am particularly monitoring that, and we're giving them slots which are they're going to be talking about them, what they're looking at, what is their experience, what are the financial goals, and we give them the right advice, what is right for them. So if you not blocked your slot, please go out and write to our business hotline number, WhatsApp it, 971-7683838. Just book, write that I want to block a slot, and somebody in 5 hours will reach out to you, take your convenient time, and put a slot for you, where our senior consultants in your city would come and spend that 30 minutes with you. It's your time. We will talk about everything about you, your opportunity, your experience, what kind of businesses you can do, and also share a lot of opportunities which would fit your profile and your financial goals and your city. And Sonia and I also are taking some slots directly. So if you want to setting up with us also, you're most welcome. And especially if you're looking for starting a larger part of the business, which means that you're looking for an area franchise or a master franchise for our businesses also, please reach out on this number, and also mention that you are interested in area and master franchise. And I'll make sure that I'll spend 30 minutes or even 1 hour with you, because that needs a little more elaborate discussion. And we can do a Zoom call or any other video call platform where we know each other and are able to really take you through the whole opportunities. So now I'll pass it back to Sonia to introduce our panelist. Very successful business, a very successful and credible organization. So over to you, Sonia, for introducing Atulji again. Thank you so much, and welcome, Atulji. And as we mentioned, the brand of today is Mahavir Meva Wala, which was established in 1989. And this is a very credible, trusted chain from Nagpur, and they have been specializing in the dry fruit, and they've been also successfully running many exclusive brand outlets in Nagpur and around. So over to you, Atulji, for taking our viewers
on the business model and your presentation. Namaskar. Namaskar, sir. Should I start now? हाँ जी अतुल जी. गौरव जी को भी नमस्ते मैडम. Sir ji. Sir, talking regarding Mahavir Mewawala, I would like to explain here the opportunities for the franchisees of Mahavir Mewawala to be appointed in coming days. महावीर मेवा वाला यह प्रतिष्ठान सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में ही डील करता है. ओनली सूखा मेवा ही यहाँ पे सेल्स होता है. महावीर मेवा वाला is near about working from 1989 and it is in Maharashtra Vidarbha region especially. Exclusively four outlets are working in Nagpur today very successfully, and other 3 outlets are in Amravati, Chandrapur and Bhandara. They are also connected to Vidarbha only, but expansion के तौर पे हम लोग अभी महाराष्ट्र के कुछ cities और MP छत्तीसगढ़ की कुछ cities में भी जाना पसंद कर रहे हैं, और we are getting good inquiries from there also. So one of the leading dry fruit sellers we are in Nagpur, and we'll be shifting our businesses to other states also. Next. महावीर मेवा वाला की प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि आज ड्राई फ्रूट्स का जो सेक्टर है, about Mahavir Mewawala, I would like to talk that dry fruits business in Nagpur related to Mahavir Mewawala is a very good opportunity to be associated with us. From last 20, 29 and 30 years, we are engaged in this business, which is going through a retail chain of exclusively dry fruit showrooms. We provide here best quality dry fruits to the society at a very reasonable cost. At present, I told you we are having 7 exclusive showrooms here working successfully. The main mission behind this venture is to provide people of this region the best quality dry fruits at a reasonable cost. And again, I would like to tell you that we are very much happy with the satisfaction and affection of the customers who are purchasing goods from our showrooms right now and from last so many years. The company is having a royal and premium packaging series. The dry fruits are specially packed in pouches, multi-layer pouches. Then they are packed in jars and other gift items also. Next. आज हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का मार्केट काफी बड़ा हो गया है. आज ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ 2-4 आइटम नहीं, काजू, किशमिश, बादाम एंड पिस्ता को ही नहीं गिना जाता है. ड्राई फ्रूट्स की रेंज में बहुत सारी चीजें भी इंक्लूड हो गई है. एवरी कंट्री इज हैविंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड दे आर रिलेटेड विद ड्राई फ्रूट्स. आज ड्राई फ्रूट्स की गिनती में बहुत सारी चीजें, नट्स है, बेरीज है, डेट्स है, काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई है. And there is a number of varieties in each item. If you talk about cashews, we have near about 6 to 8 varieties in cashews, from smaller size to bigger size, then pieces, 2 pieces. In then kismis, we have again 6 to 7 varieties. Then almonds, we have Mamro almonds, we have California almonds, we have Australian almonds. Then figs, there are a number of varieties in figs. Then apricots, and again pista. There is a salted pista, plain pista. ड्राई फ्रूट्स की रेंज में भी क्वालिटी बहुत मिलने लगी है और लोग क्वालिटी खाना पसंद कर रहे हैं. Then if we go to other sector, that nuts and berries have also come to the markets now. People are choosy now. They want seeds, they want berries. हेल्थ कॉन्शियस के प्रति लोग सजग हो गए हैं और सजग रहने के साथ साथ में वो नेचर से जुड़ी चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं. इसमें सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, all these items are very much effective for the health. Then again, related to dry fruits, we are specially manufacturing मेवा लड्डू. महावीर मेवा वाला का यह एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है. इसको हम ताकत के लड्डू भी बोल सकते हैं. Especially these laddus are used by pregnant ladies in after delivery to get strength. Then specially महावीर मेवा वाला also manufactures काजू कतली, which is a special product. And other dry fruit sweets like badam katli, pista katli are also manufactured by us. Then in dates range, there is a number of dates.
सऊदी की जो डेट्स होती है इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं. इट वेरीज फ्रॉम इसके जो रेट्स होते हैं वो 100 रुपीज केजी से लेके 5,000 रुपीज केजी तक वेरी करते हैं. ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी. People buy as per their requirements and needs. And again, then more items related to dry fruit stores are cardamom, then गोंद बोलते हैं हम इसको, पिस्ता है, मिल्क मसाला है. Again, many products are related with this. They are also sold at our showrooms. Next. गौरव जी और सोनिया मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि महावीर मेवा वाला का एक बहुत सबसे अनूठा फीचर है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स. कॉर्पोरेट गिफ्टिंग्स को लेकर हमारे पास में करीबन 50 to 60 बॉक्सेस का रेंज एवरी ईयर हम उसको चेंज करते हैं. द मेन फीचर इज दैट कि ये सारी 50 से 60 बॉक्सेस की कॉर्पोरेट गिफ्टिंग बॉक्सेस की रेंज जो है, इसके बॉक्सेस भी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. तो इससे क्या होता है कि मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी होने का कोई भी खतरा नहीं होता है. ये जो सारी बॉक्सेस की जो डिजाइन्स, बॉक्सेस के रेंजेस, ये सब हम मैन्युफैक्चरिंग करने के कारण हम इसका जो अंदर का जो गुड्स का जो डिस्प्ले होता है, अंदर जो मटेरियल होता है, इसका डिस्प्ले भी बहुत शानदार तरीके से होता है. आपको वो जो अंदर पार्टीशंस रहते हैं, वो पार्टीशंस में भी एक एक कैशूज ऐसा हम सजा के उसको जमा के उसमें भरा जाता है, ताकि उसका जब वो बॉक्स खोला जाए तो उसका लुक इतना प्यारा लगे कि सामने वाले का जो फीलिंग है वो उसमें दिखना चाहिए. So near about 50 to 60 types of gift boxes. Every year we bring a new series. And especially I would like to talk to you that Diwali is the major season of this business. There are about 30 to 35% business of the whole year can be covered at Diwali season. दिवाली में जो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर्स में गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया जाता है और लोगों को एक अपनी सहानुभूति पेश करने का तरीका होता है, वो एक रिलेशन बनाने का एक जरिया है. तो उसमें लोग ड्राई फ्रूट के गिफ्ट बॉक्सेस बड़े पैमाने पे अपने स्टाफ को भी देते हैं या ऑफिसर्स क्लास को भी देते हैं, या जो भी जिससे उनको काम है वो वहां पे उसको दिया जाता है. तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है. ये these boxes are sold in thousands of quantities. At present, Mahavir Mewawala is selling in thousands in limited cities. But going to major cities like Bombay, Pune, in Maharashtra and other capitals of other states, इसका जो सेल्स होगा, इसका नंबर हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका कोई थर्मामीटर नहीं हम सेट कर सकते कि कितना बिक सकता है. तो महावीर मेवा वाला का जो गिफ्टिंग रेंज है, ये इसका कॉस्टिंग भी हम लोग इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹300 और एंडिंग तो उसका 5,000 से भी ज्यादा. आप जितना ज्यादा बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बन सकता है. आपको कितना उसमें पैसा डालना है, कितना रुपए का गिफ्ट देना है, that depends on you, on the customer. So it is a good range and it has a good success also. Next. Why people like to purchase from Mahavir Mewawala? Yes, it's a good question. I would like to tell you. महावीर मेवा वाला से ही लोगों ने ड्राई फ्रूट्स क्यों परचेस करना चाहिए. अब हम बताएंगे आपको कि महावीर मेवा वाला ये जो कंसर्न है, ये जो प्रतिष्ठान है, ये ओनली ड्राई फ्रूट्स के ही बिजनेस में डील करता है. आज हम आपसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि महावीर मेवा वाला ये जो प्रतिष्ठान है, ये पिछले 30 सालों से ओनली ड्राई फ्रूट्स पे डील करता है. हमारे जो भी शोरूम्स अभी रन हो रहे हैं उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स के अलावा दूसरे आइटम्स नहीं मिलेंगे. Many stores running in the market are associated with bakery products. They will be selling cakes, they will be selling cold drinks, they will be selling other items like bread and all. तो कनेक्टेड एक्टिविटीज जो रहती है ड्राई फ्रूट बिजनेस के साथ में वो बहुत सारी होती है. लेकिन हमारे जो स्टोर्स है, हम स्पेशली ड्राई फ्रूट्स का ही बिजनेस करने के कारण एक स्पेशलिटी हमारी एक्सक्लूसिविटी है. वी डू नॉट सेल एनीथिंग अदर देन रिलेटेड टू ड्राई फ्रूट्स. बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ओनली फॉर सप्लाई एंड सेल्स. क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स हम इस पे रिलेट करेंगे तो हमारा जो फोकस ड्राई फ्रूट्स पे होगा वो नहीं रह पाएगा. हमारी उस पे से क्वालिटी कंट्रोल की नजर नहीं रहेगी. क्योंकि हम एवरी प्रोडक्ट जो होता है, काजू भी होता है, किशमिश भी होती है, हम एवरी प्रोडक्ट दे आर हैंड पिक्ड, दे आर सॉर्टेड एंड दे ऑल आर गॉन थ्रू क्वालिटी कंट्रोल चेक्स बिफोर दे आर पैक्ड इन द पाउचेस एंड जार्स. क्योंकि हर प्रकार के आइटम में अलग अलग वेराइटी है, अलग अलग रेंज है. जैसे कैशूज में आई टोल्ड यू 6 to 8 numbers varieties are there. So every cashew is sorted in the range of that particular rate. उसमें से जो टुकड़ा होता है, कैशू होते हैं, वो हम उसको बाहर कर देते हैं.
द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन पाउचेस एंड जार्स, और एक्सक्लूसिवली हम लोग वो पाउचेस में और जार्स में जब उसको पैकिंग करते तो वी लोड ऑक्सीजन एब्जॉर्बर इन दैट pouch and jar, so that the freshness of the product and the color of that product, it is maintained for a longer time. That oxygen absorber pouch is very much useful for that, to maintain the life of the product, because it's all the dry fruits products are perishable. One more thing I would tell, that in our showrooms we don't sell loose products. And while showing to the customer, all the packets are packed in jars and pouches. हम लोग सारे पैकिंग ही हमारे शोरूम्स में रखते हैं, ताकि किसी कस्टमर को हम उसको लूज में नहीं देते हैं। जैसे पहले पुराने सिस्टम में होता था कि किराना शॉप में बर्नियों में काजू रखे होते थे, फिर वो कोई आता था बोलता था 100 ग्राम काजू दीजिए, तो वो उसमें से अपने हाथ से निकाल के उसको 100 ग्राम काजू देता था। लेकिन अब वो चीजें खत्म होते आ गई है। मुझे नहीं लगता कि आज वो मार्केट को प्रेजेंस है उनका। स्पेशलाइज की तरफ हम जा रहे हैं, तो स्पेशलिटी मेंटेन हो रही है अब। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड कैटेगरी असेसमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशलाइज्ड, एक्सक्लूसिव रिटेल कांसेप्ट महावीर मेवा वाला। फर्स्ट आई विल टॉक टू अनऑर्गेनाइज्ड। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जो किराना शॉप्स होती थी, ड्राई फ्रूट्स का सेल्स वहां से होता था। एक बड़ी किराना शॉप जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, करीबन 500, 700, 1000, जैसा वो दुकानदार बिजनेस करता है उस हिसाब से। और अनऑर्गेनाइज तरीके से वो बिजनेस होता था, कोई पर्टिकुलरली एक आइटम को वो फोकस नहीं करता था। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस होना है, बहुत रेयर क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में वो बिजनेस होता था, और पहले खाने वाले भी बहुत होते थे। धीरे धीरे समय गया, में जागरूकता आती गई, लोगों का थोड़ा आने, लोगों की इनकम सोर्स भी बढ़ने लगी। देन दे शिफ्टेड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। थोड़ा सा फिर वो उसको अलग से ड्राई फ्रूट्स को सजा के रखा जाता था, बर्नी में रखा जाता था, तो दिखता था लोगों को। ऑर्गेनाइज के बाद में हम लोग स्पेशलाइज की तरफ बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे और समय बदल गया, लोग स्पेशली शोरूम्स की तरफ जाने लगे। भाई किसी को आज कोई एक अपना सूट खरीदना है, तो वो ही प्रीफर्स टू गो टू रेमंड शोरूम, ही प्रीफर्स टू गो टू द दिग्जाम शोरूम। वैसे ही ये ड्राई फ्रूट सेक्टर में भी अब स्पेशलिटी आ गया है। स्पेशलिटी के साथ में फिर हम अब इस 30 साल से हम लोग काम कर रहे, तो हमने इसको एक एक्सक्लूसिव रिटेल कांसेप्ट के तौर पे हमने इसको डेवलप किया। हमने लॉन्च ही उसको इस हिसाब से किया था कि अभी ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस ही अलग हो जाना चाहिए। तो स्पेशली दैट शोरूम विल हैव ओनली ड्राई फ्रूट्स आइटम्स। एक्सक्लूसिव रिटेल कांसेप्ट के तहत में हम लोगों ने महावीर मेवा वाला के नाम से स्पेशल ड्राई फ्रूट शोरूम के तौर पे इसको शुरुआत किया। शुरुआत में तो हमको भी काफी दिक्कतें गई, बिजनेस नहीं होता था, लोगों का अट्रैक्शन नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे कांसेप्ट चलने लगा, लोगों को अच्छी चीजें मिलने लगी, यहाँ से लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने लगे और रीजनेबल रेट्स भी मिलने लगे, तो लोगों ने वो एक्सक्लूसिव कांसेप्ट को बहुत सर पे उठा लिया। और आज ये कांसेप्ट हमारे यहाँ पे नागपुर में हमने सक्सेसफुल किया है इसको। और महावीर मेवा वाला आज सक्सेसफुली रिटेल चेन के रूप में यहाँ पे प्रख्यात हो गया है। और मैं आपको ये भी दावे के साथ में कहता हूँ कि महावीर मेवा वाला आज नागपुर में ये चेन चला रहा है। We are going to other cities and other states as our expansion, but I would like to tell you, I don't see such showrooms related to dry fruits only still now in big cities also. Number of products इतने सारे ज्यादा जुड़ जाते हैं उसमें कि वो एक ड्राई फ्रूट शोरूम नहीं कह सकते उसको। आज भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिव रिटेल ड्राई फ्रूट शोरूम्स की बहुत कमी है मार्केट में। तो वी आर फुलफिलिंग फॉर दैट। वी हैव come in the market now to give franchises to the other cities also. Next, overall retail industry in India estimated to be 1.1 ton in 2020. अब हम 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 का जो ग्राफ देख रहे हैं हम, उसके ऊपर सबसे बात करेंगे कि ड्राई फ्रूट्स का जो कंजम्पशन है वो इंडिया में कितना है। रिटेल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड हो गया। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट एंड प्रीफर्ड रिटेल डेस्टिनेशन ग्लोबली। आज अपने इंडिया की जो पॉपुलेशन है और यहाँ का जो कंजम्पशन है, उसका हम रेशियो निकालेंगे तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट country globally. The country is among the highest in the world in terms of per capita retail store availability.
रिटेल स्टोर्स के माध्यम से यहाँ पे खरीदी करने वालों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है. इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इकोनॉमी इन कमिंग टाइम. आने वाले समय में इंडिया एक और भी बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी के रूप में उभरेगी. 27.95 लाख करोड़ इन कंजम्पशन बाय 2025 तक ये रिटेल इंडस्ट्री इंडिया की बहुत आगे निकलेगी और इसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, which will be up to $400 billion. Because India is a very greater population country, so retail outlets are very successful here and they are to be run at a very large scale. India will become a favorable market for fashion retailers on the back of a large young adult consumer base, increasing disposable income and relaxed FDI norms. हम सरकार की पॉलिसियों की भी बात करें और आने वाले समय की भी बात करें तो एक इंडिया एक फेवरेबल मार्केट फॉर फैशन रिटेलर्स तो जरूर बन रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स लोगों की जो डेली नीड्स है वो प्रोडक्ट्स भी बड़े पैमाने पे यहाँ पे सेल्स होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मार्केट इंडिया में है. वेरियस एडवांटेजेस आर आल्सो देयर फॉर दिस बिजनेसेस. नेक्स्ट. Organized retailing in India estimated to be 7.7 to 8% of total retail industry. Organized retailing refers to trading activities, that is those who are registered for sale tax, income tax, etc. Organized retailing जो आज हम कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे तो इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स भरने वाले जो लोग होते हैं दे आर द रिटेलर्स फॉर दैट, विच आर जो इनकम टैक्स सेल टैक्स भर रहा है वो नेचुरली एक अच्छा पेड कस्टमर है, वो अच्छी आपको सेल्स दे सकता है. These include the corporate backed hypermarkets and retail chains and also the privately owned large retail businesses. In 2020 it is estimated that organized retail penetration share would be 10%. The organized retail sector in India has huge untapped potential for adopting digital mode of payments. Yes, today digital mode payments are very much popular. आज हम भी 2-3 साल से जब से नोटबंदी आई है, जब से हम भी देख रहे हैं कि नियर अबाउट 40 to 50% पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय डिजिटली ओनली. तो एक वो बिजनेस करने का तरीका भी उसमें थोड़ा बदला है. और ये बात बरोबर है कि 63% ऑफ द रिटेलर्स आर इंटरेस्टेड इन यूजिंग डिजिटल पेमेंट्स. डिजिटल पेमेंट्स आने से हमारा भी एक हेडेक खत्म होता है, कस्टमर से कैश लेने का, गिनने का, उसको संभालने का, वो टोटली एक रिस्क भी हो जाती है. And all the digital payments are now suitable by mobile phones and card payments. तो ये चलन में बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये भी चीजें काफी अपने को हेल्पफुल रहेगी. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. I would like to change the screen. Next. Shruti, can we go on the next slide, please? Let me just check with Kanikam because she's sharing the screen. I think there must be some hang to she will reload it. And she's just connecting. There was some network. Yeah, no problem. Go forward. Yeah. Bus. Related to dry fruits consumption in India, here the chart is showing here that in general and major type of the dry fruits consumed in India includes cashews, raisins, walnuts. I told all you. यहाँ पे सभी का ग्राफ भी दिया हुआ है कि सेल्स में कितना शेयर किसका होता है. In cashews is the major product in the dry fruits. It covers 55% of the consumption. Almonds 14%, walnuts 10%, pistas 9 to 10%, raisins then 7%, and other related products it comes to 5%. Region-wise dry fruits consumption. North
साउथ वेस्ट ईस्ट की हम बात करें तो नॉर्थ में इसका कंजम्पशन ड्राई फ्रूट का ज्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ एरिया में ठंडी भी होती है और वहां पे लोग पहले से खाना पसंद करते आए हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट है वेस्ट, देन यू गो टू साउथ विच इज आल्सो देयर। ईस्ट में इसका कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। मेजर कंजम्पशन ऑफ ड्राई फ्रूट टेक्स प्लेस इन द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट, factors leading consumers are becoming aware about the health benefits associated with dry fruits consumption. Yes, आज हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक चल रहा है। पिछले साल भर से हम लोग पैंडेमिक को झेल रहे हैं, लेकिन इस पैंडेमिक के सीजन में भी एज अ ड्राई फ्रूट बिजनेसमैन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बिजनेसेस इन पैंडेमिक हैज इंक्रीज्ड। पैंडेमिक के पीरियड में लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को और भी अपनाया, जो नहीं खाते थे उन्होंने भी अपनाया, जो आधा किलो लेता था वो 1 किलो लेने लगा। उसने अपने ड्राई फ्रूट्स को अपना एक कंजम्पशन का एक और जरिया बनाया। उसने दूसरी चीजें को खाना कम किया और ड्राई फ्रूट्स पे ज्यादा जोर दिया, बिकॉज अभी पैंडेमिक में हर कोई आदमी हेल्थ कॉन्शियस है, सभी को अपनी जान की परवाह है, सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है कि हम कैसे अच्छे से अच्छा खा सके और अच्छे से अच्छा रह सके। increasing awareness of health needs, it's a period like this only कि हर आदमी अपने awareness को लेके, health needs को लेके aware है। at all this it's increasing disposable income levels, better availability, right packaging। तो ऐसे समय में जो ड्राई फ्रूट्स खाना कंज्यूम कर रहे हैं जो लोग हैं, जो कस्टमर्स है, दे प्रीफर टू गो टू बेटर अवेलेबिलिटी, यानी जो रेगुलरली उनको एक ही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिलती रहे। देन राइट पैकेजिंग, बिकॉज when it is packed and when it will be expiring, तो उसका सब चीज देखने के बाद में वो राइट लेबल पैकेजिंग की तरफ भी जाएगा। कंसिस्टेंट क्वालिटी आज वो एक बार काजू ले आता है, उसको वो अच्छा मिल जाता है तो दोबारा आपके पास में आता है। दोबारा आने के बाद में आपको वो सेम क्वालिटी उसको प्रोवाइड करना है। यदि वो प्रोवाइड नहीं करते तो वो कस्टमर आपका टूट सकता है। देन एडिक्वेट प्रोडक्ट कम्युनिकेशन, लेबलिंग पे सारी जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट इज द बैच नंबर, व्हेन इट इज पैक्ड and when it will be best before, इसका एक्सपायरी कब तक के है, देन उसका रेट्स, देन उसका ग्रामेज, देन वो जितना ग्राम आपने वो पैकेट पे लिखा है तो वो उतना प्रोडक्ट उसमें रहना भी चाहिए। इफ यू suddenly randomly check the product on the weighing machine, it should not be lesser than that। never products such as hazelnuts, pecan nuts etc। अभी सारे ड्राई फ्रूट्स का जो है वो खपत बढ़ गई है और कंजम्पशन लोगों का बढ़ गया है। तो सारी चीजों का लेबलिंग से लेके, क्वालिटी से लेके, मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी तक सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ताकि कस्टमर को कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत ना पड़े। तो ये मेन महावीर मेवा वाला से काम करने के लिए ये फीचर्स काफी मायने रखते हैं। देन विल टॉक अबाउट द कंजम्पशन एंड टर्नओवर्स। इन 2016 इट वाज 15,000 किलो टन्स ड्राई फ्रूट का कंजम्पशन। 2016 की हम बात करें, आज से करीबन 5-6 साल पहले की बात करें तो 2016 में ये 15,000 टन का मार्केट था और अचानक ये 2020 में डबल हो जाता है। तो आप देखते हैं कि पिछले 5 सालों में ड्राई फ्रूट्स खाने वालों की या ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। देन 2016 में हम बात करते हैं तो 450 किलो, सॉरी इट वाज इन द फर्स्ट चार्ट वाज ऑफ टर्नओवर इन रुपीस। तो 2016 में ये 15,000 करोड़ का मार्केट था और 2020 में ये 30,000 करोड़ का मार्केट बन गया। फिर 2016 की हम बात करें किलो टन्स कंजम्पशन के हिसाब से तो वो 450 किलो टन्स था और 2020 में ये 1,000 किलो टन हो गया, नेक्स्ट टू डबल। देन ग्राम्स पर कैपिटा पर ईयर, per person capita of consuming dry fruits in 2016 was 340 grams, which suddenly jumps in 4 years to 725। तो इस पे से समझ में आ जाता है, अंदाजा लग जाता है कि ड्राई फ्रूट्स की खपत हर साल 2 साल नहीं, हर साल बढ़ती है और लोगों का कंजम्पशन का इसमें मात्रा बढ़ रही है। तो आज ड्राई फ्रूट्स का जो बिजनेस करने के इच्छुक फ्रेंचाइजीज है, मैं उनसे भी ये कहूंगा कि इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। आप ये बिजनेस को रोज उसको उसमें एक्सपांड कर सकते हो, रोज उसमें एडिशन हो सकता है बिजनेस में आपके। आज आपके पास में 2 किलो कोई चीज 20 किलो आइटम बिक रही है तो आप सेकंड डे उसको 22 किलो बेचने की तरफ ही जाओगे, आप उसको पीछे नहीं जाओगे। नेक्स्ट, सेटिंग अप द विनिंग स्ट्रेटेजी, रिटेल स्ट्रेटेजी, फ्रेंचाइजिंग एंड सप्लाई चेन। रिटेल स्ट्रेटेजी तो हमने आपको बताई। अब इसका जो नेक्स्ट एक और फीचर है
कि आज मार्केट 3 सेक्टर में बटा हुआ है, लोअर रेंज, मिडिल रेंज एंड हायर रेंज। तो लोअर रेंज की हम बात करेंगे तो हम आपने हमने आपसे बात की थी कि किराना शॉप्स एंड बेकरी शॉप्स which are not specialized related to dry fruits, but they sell dry fruits. So they, like these GT stores and all these stores are they all medium class, lower range stores where especially dry fruits are not exclusively sold. Then the market comes to the middle range, like Big Basket, Grofers, Lance Fresh, and all these bazaars, malls. वहाँ पे मीडियम रेंज का माल मिलेगा आपको. Then one comes to the higher range, that is food hall. Actually, food hall is also a very higher. But बिग बास्केट और फूड हॉल के बीच में का जो एक सेक्टर समझ सकते हैं, वहां पे महावीर मेवा वाला सेट है. महावीर मेवा वाला के यहाँ पे आपको हम कस्टमर के लिए लोअर रेंज भी रखेंगे, मीडियम रेंज भी रखेंगे, हायर रेंज भी रखेंगे. कोई कस्टमर यदि ये कहता है कि मुझे बादाम की छोटी क्वालिटी चाहिए, तो वो भी उसको मिलनी चाहिए. तो हमारे यहाँ पे तीनों रेंज से कनेक्टेड गुड्स आपको मिलेंगे. कैशू हमारे पास में आपको 900 रुपीज पर केजी मिलेगा, तो हमारे पास में 2400 रुपीज पर केजी वाला कैशू भी मिलेगा. कोई भी कस्टमर को कौन सा पर्पस है, क्या है, उसकी नीड क्या है, वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए. इसलिए हम वो लोअर रेंज से लेके, लेकिन वो लोअर रेंज वाला भी कैशू हम साफ सुथरा करके ही फ्रेश उसको देंगे. तो हम तीनों सेक्टर्स को माल प्रोवाइड कर सकते हैं. ऐसे हम क्वालिटी वहां पे रखते हैं ताकि कोई भी कस्टमर हमारे वापस न जाए, उसको हर प्रकार का रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल हो. नेक्स्ट, difference between Mahavir Meva Wala and other stores. The rates in Kirana shops are lesser than of other shops. The rates in our shop are little higher. Yes. अभी हम दोनों की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि किराना शॉप्स में रेट्स कम होते हैं और हमारे शॉप्स में लिटिल हायर होते हैं. अब हम आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देंगे कि अभी एक काजू का टीन होता है 10 केजी का. अब एक काजू का टीन 10 केजी का यदि वो रिटेलर ने लाया होलसेल मार्केट से परचेस करके और अपनी दुकान में बेचना चाहता है, तो वो उसको बरनी में खाली करता है. बरनी में खाली करता है तो वहां उसकी सॉर्टिंग वगैरह कुछ होनी नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली उसको सेल करता है. तो वो सॉर्टिंग का एक पार्ट उसका खत्म हो गया. सॉर्टिंग करने में जो 2 पीसेस 3 पीसेस निकलते हैं, उसका जो रेट वेरिएशन आ गया वो उसको नहीं लग रहा है. हम जबकि उसको सॉर्टिंग करते हैं तो 2 पीसेस एंड 3 पीसेस आर डाइवर्टेड, दे आर अलग से हम उसको सेल करते हैं तो उसका रेट हमको कम मिलता है. यहाँ पे एक छोटा सा रेशो रुपीस का लग गया, हमको उसका एक बेनिफिट नहीं मिलेगा. और वहां पे उसको वो स्पेशली उस प्रोडक्ट के लिए वो शोरूम नहीं चला रहा है, तो हमको तो स्पेशली वो प्रोडक्ट के लिए शोरूम चलाना है, उसकी पैकेजिंग करके रखना है, उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डालना है, उसकी लाइफ कैसे बढ़ सकती है, उसका मेंटेनेंस करना है. सारी चीजें देखते हो तो उस पर लेबर लगेगी, खर्चे लगेंगे, सभी लगेंगे. इसलिए वो चीज थोड़ी सी जाके वहां पे हायर हो जाती है, उसका रेट थोड़ा सा हायर हो जाता है. The quality of the products do not match with specialized stores. Yes, it's the fact. क्योंकि उनके किराना शॉप्स में जो माल बेचेंगे वो उसका रेट दूसरे जो एक्सक्लूसिव स्टोर है जैसे महावीर मेवा वाला के स्टोर से कभी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज द बेस्ट व्हेन कंपेयर्ड टू किराना शॉप्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड स्टोर्स. उनके क्वालिटी में हमारे क्वालिटी में फर्क रहेगा, ये आपको सामने दिखेगा. जब आप एक बार किराना शॉप से ले चुके हो और दूसरी बार जब महावीर मेवा वाला के स्टोर से परचेस करोगे, तो यू कंपेयर द क्वालिटी एट योर होम. I would like to tell you some things here which are our experiences. कि आज लोग जो महावीर मेवा वाला से ड्राई फ्रूट्स घर ले जाते हैं, मे बी आवर कस्टमर्स नंबर विल बी लेस इन एज वी आर डीलिंग इन नागपुर ओनली. तो जो भी हमारी कस्टमर्स है, तो कई बार हमें ये देखने में आता है कि कस्टमर्स जो हमसे हमेशा ले जाते हैं माल, वो स्पेशली बोल के देते हैं कि आपका ही पाउच चाहिए, हमको दूसरा नहीं चाहिए. क्योंकि घर जाने के बाद में जब उसकी वाइफ वो प्रोडक्ट देखती है और उसको यदि उसको महावीर मेवा वाला का पाउच या स्टैंप नहीं दिखता है, तो ही स्कोल्ड्स हिम कि आपने इसको महावीर मेवा वाला से नहीं लाया है, आप ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. द ओनली थिंग इज कि ब्रांड महावीर मेवा वाला का लोगो ही दिखना काफी है, तो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन अपने आप हो जाता है, क्योंकि उनको उतना विश्वास इतने सालों में हो गया है कि यहाँ पे गलत चीज नहीं होगी, यहाँ पे गलत प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. और इवन समटाइम्स इट्स अ फूड आइटम, इफ समटाइम्स थिंग्स हैपन, तो वी टोटली रिप्लेस द प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. वो प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी नहीं होती है, लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो हम वो प्रोडक्ट्स को वापस से ले लेते हैं एंड दे गिव वी रिप्लेस देम विद फ्रेश वंस. अगेन देयर आर नॉट ऑलवेज पैक्ड और पुअरली पैक्ड विद लीड टू पुअर क्वालिटी. किराना शॉप्स में कभी भी माल पैक्ड नहीं रहता, वो खुला रहेगा. 10 बार वो बर्नी का कैप खुलेगा, उसमें हवा जाएगी, उसका वो फ्रेशनेस, उसका क्रिस्पीनेस वो खत्म होते जाता है, उसकी फ्रेशनेस खत्म होते जाती है. कुछ दिनों बाद में
वो बाहर की हवा लगने से उसको अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं. द सेम थिंग एट महावीर मेवा वाला विल टॉप. द पैकिंग आर हाईली हाई क्वालिटी फिल्ड विद ऑक्सीजन एंड अनटच्ड बाय ह्यूमन. यस, हमारे पैकिंग में आपको एक बार पैकिंग वो हो गया, उसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्बर का पाउच लोड हो गया, तो उसको खुलने का कोई कारण ही नहीं है, और उसमें नंबर ऑफ पीपल के हैंड्स लगने वाला नहीं है. तो मेन देखेंगे तो हाइजीनिक वे में पैक होने के कारण उसका क्रिस्पनेस, उसका कलर, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, और उसके लिए भी हम ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डालते हैं जो करीबन 2 से 3 महीना उसको फ्रेश रखता है. Then again in kirana stores, products are not checked since they are bought in local market for low prices. Yes, I talked to you कि वो होलसेलर से लाता है तो वो उसको चेक नहीं करते कि कैसा माल है, डब्बा खोला, बर्नी में डाल दिया, काम खत्म, वहां से बेचना शुरू. बट ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है. महावीर मेवा वाला में जब भी कोई फैक्ट्री से या कोई होलसेलर से माल आएगा तो दैट इज चेक्ड फर्स्ट. वो पहले पूरा माल खुलेगा, वो पूरा ऑन दैट सफाई छटाई की मैट होती है उसके ऊपर वो ट्रे में खुलेगा, उसको हमारी जो स्पेशलाइज्ड लेबर है उसको छाटेगी, उसके टुकड़े अलग करेगी, उसमें कोई जाला लगा है या कोई जर्म्स है दिखता है तो उसको वो सॉर्ट आउट करती है पूरा, ताकि बेस्ट से बेस्ट वो सेलिंग के लिए कस्टमर के पास जाए. उसमें कहीं पर भी लोगों के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे तरफ से नहीं जाना चाहिए. Then again in kirana shop, no after sale service since once sold there is no return. Yes, it is the fact. अब किराना शॉप से आप सामान आपने लिया तो आप वापस 2 दिन बाद जा रहे हो वहां पे कि भैया काजू नहीं जम रहा, तो वो वापस नहीं लेगा आपसे. उसके पास में इतना टाइम नहीं है कि वो उसको हजारों आइटम बेचना है, शक्कर गुड़ से लेके रवा मैदा से सब चीज उसको बेचना है, तो वो आपका वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेगा वो. Then the same thing related to Mahavir Meva wala, we would like to tell you that after sale service is always taken care of, since we sell only the best of our customers. अब जबकि हम माल ही अच्छा बेच रहे हैं, गुड्स अच्छे दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, तो उसमें फ्रेशनेस कायम रहेगा, उसकी लाइफ मेंटेन रहती है, तो उसमें शिकायत का मौका आता ही नहीं है. और मैंने बताया कि शिकायत का मौका यदि आता भी है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग with the thinking of the customer, we do not argue with him, we totally replace the product on the spot, ताकि उसका सेटिस्फेक्शन बना रहे, कि उसको ऐसा लगे कि ये नहीं, मैंने जो कहा वो सही है. ये इसके पीछे का मेन कारण होता है कि उसका सेटिस्फेक्शन जरूरी है. नेक्स्ट, why exclusive brand outlet is need of the hour. yes, आज मार्केट में हर प्रोडक्ट के लिए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट की आवश्यकता क्यों है. अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशलाइज्ड एंड ईबीओज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि आज टुडे मार्केट इज गोइंग टू एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड ब्रांड शोरूम्स. न्यू इमर्जिंग प्रोडक्ट्स, न्यू ड्राई फ्रूट्स आर कमिंग इन द मार्केट. कस्टमर नीड्स एडवाइजरी डिस्कशंस टू एक्सप्लोर दिस प्रोडक्ट्स. आज रोज नए प्रोडक्ट्स मार्केट में, हर कंट्री अपने नेचर से बना रही है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, सीड्स आ रही है, बेरीज आ रही है. तो ये सारी चीजें किराना शॉप्स वाले या छोटे स्टोर्स वाले, बेकरी वाले नहीं अफोर्ड कर सकते रखना, क्योंकि वो माल यदि उनका गुड्स जो है वो पर्टिकुलर पीरियड में यदि नहीं बिकता है तो वो माल वेस्ट हो जाएगा, वो माल खराब हो जाएगा. देन इट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर कंज्यूमिंग. और गलत माल देके वो कस्टमर को अनसेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग वो उसको बेचते ही नहीं है. तो नीड, अब नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो ड्राई फ्रूट स्टोर में ही क्यों बिक सकते हैं, क्योंकि वो सामने लोगों को ड्राई फ्रूट स्टोर में लिमिटेड आइटम्स होने के कारण वो फोकस होगा वहां पे, वो प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स फोकस होंगे, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, एडवाइजरीज दी जाएगी, डिस्कशंस होते हैं उसके ऊपर कि ये प्रोडक्ट्स में क्या है, कहाँ का है, इसका क्या फायदा है. उससे वो लोगों को नए प्रोडक्ट्स भी लेने में रुचि बढ़ती है. कंप्लीट रेंज. मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स वर्क ऑन सेल्स पर स्क्वायर फीट, thus only allow fast moving categories for a brand on a limited shelf space allocated to them. अब किराना शॉप्स की बात करें या हम छोटा तुम्हारा बेकरी स्टोर की बात करें या छोटे बाजार जो होते हैं सुपर बाजार उसकी बात करें, तो ड्राई फ्रूट्स को लेकर वो लोग इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं. उनका ड्राई फ्रूट को ही सेल करना ऐसा जरूरी, उनको सारे प्रोडक्ट सेल करना है. ड्राई फ्रूट्स के लिए वो पर्टिकुलरली एक छोटी सी अलमीरा में या छोटे से काउंटर पे वो रख देते हैं ताकि वो माल लोगों को दिखे और वो बिकता रहे. अभी उनके पास में इतना स्टॉक भी नहीं होता है कि कोई कस्टमर यदि ज्यादा मांगे तो उसको दे सके. देन लिमिटेड शेल्फ स्पेस दे आर एलोकेटेड एट दैट. वो 10 से 20 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी अलमारी में वो प्रोडक्ट्स रख देंगे ताकि वो डिस्प्ले भी नहीं होते हैं और उसको कोई बताने वाला भी नहीं होता है.
but Mahavir Meva wala with a wider portfolio needs to have own stores to showcase the complete range. अब महावीर मेवा वाला की स्टोर्स की हम बात करते हैं तो ये फ्रेंचाइजी स्टोर है, यहाँ सिर्फ महावीर मेवा वाला का ही प्रोडक्ट बिक रहा है। यहाँ पे सारे महावीर मेवा वाला के प्रोडक्ट्स को एक डिस्प्ले मिलेगा, लोगों को सामने से दिखता है कि कोई नया प्रोडक्ट आया है तो वो सामने से खुद उसकी इंक्वायरी करते हैं कि ये क्या है, तो इसलिए वो महावीर मेवा वाला में वो प्रोडक्ट्स ज्यादा चलेंगे। देयर इज अ शोकेस, देयर इज अ मिरर इमेजेस, ऑल चारों तरफ से वो कांच का शोरूम होता है तो दिखने में चारों तरफ से उसको प्रोडक्ट्स दिखते हैं। With evolving customer demands, there is always a customer for new products. Every day, every month, while we go to purchasing for the products, new products are entered in the market. 2-4 प्रोडक्ट नए आते ही रहते हैं, तो लोगों को एक नई चीजें यहाँ देखने को मिलती है कि भाई ये प्रोडक्ट आज आया है, इसका क्या डिमांड है, इसका क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, हेल्थ के लिए कैसा सुटेबल रहेगा उनको। Customers experience with exclusive store brand can impart best customer experience with assistance in purchase, product knowledge, etc. अब वो एक्सक्लूसिव स्टोर रहेगा कोई भी, जैसे महावीर मेवा वाला का एक्सक्लूसिव स्टोर है, तो वहाँ पे कस्टमर को वो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट्स की, ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स की रेंज की, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसका ग्रेडनेस के बारे में, उसकी हम जानकारी उसको दे सकते हैं। किराना शॉप्स में और छोटे शॉप्स में ये पॉसिबल नहीं है। Then we will talk about the price advantage. With direct stores, brand ensures best possible pricing for the customers. अब हमारे यहाँ पे डायरेक्टली यदि कोई कस्टमर आता है तो उसको एक रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट कैसा दिया जाए, इसके ऊपर तो हम जरूर विचार करेंगे, बिकॉज वी विल हैव टू थिंक अबाउट द कस्टमर्स इनकम, हिज पैकेट आल्सो। उसके जेब पे भी ज्यादा जोर नहीं देंगे, क्योंकि आज तो तुम ज्यादा ले लोगे, कल वो मार्केट में घूमेगा, उसको भी कुछ समझ में आएगा, वो भी देखेगा, उसको भी, कस्टमर को बेवकूफ नहीं समझना है हमने भी। वो सारी चीजें वो ध्यान में रखते हुए ही मार्केट के रेट्स हम लोग फिक्स करते हैं। नेक्स्ट, टू रिप्लिकेट एफिशिएंट 150 to 200 स्क्वायर फीट शोरूम। अब हम महावीर मेवा वाला के फ्रेंचाइजीज की बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एक 100 स्क्वायर फीट से लेके 200 स्क्वायर फीट के स्पेस में महावीर मेवा वाला का शोरूम बहुत अच्छे तरीके से रन किया जा सकता है। 100 स्क्वायर फीट का भी शॉप है तो वो अपना बिजनेस कर सकता है, नियर अबाउट 200-300 जितना बड़ा शोरूम उसको खोलना है वो खोल सकता है, बट 300 स्क्वायर फीट में उसका पूरा नीड कंप्लीट हो जाता है। 300 स्क्वायर फीट शोरूम कैन बी रन सक्सेसफुली with a wider display and wider focus. So 100 स्क्वायर फीट शोरूम भी यदि है तो उसको वो बिजनेस करने के लिए कैपेबल है, वहां पे अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो कुछ हमारी जो इमेजेस हमने बताई है ये कि ऐसा शोरूम हो सकता है। तो ये शोरूम का एक इंटीरियर डिजाइन है कि ये अलमारी कैसी रहेगी, काउंटर कैसा रहेगा, उसका डिस्प्ले कैसा होगा, ये चारों तरफ से हमने बताने की कोशिश की है। इसमें डिस्प्ले यूनिट्स कैसे है, सारी चीजें आज हमारे ये शोरूम्स जो नागपुर में है वहां पे भी मेंटेन्ड है और वहां पे भी हम इसी प्रकार से काम करते हैं। और एक बात इसमें, सॉरी अगेन यू गो टू बैक, ये फर्नीचर की जो बात कर रहे हैं, ये फर्नीचर यदि आपके पास में 100 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट का स्पेस है और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्रेंचाइजी और महावीर मेवा वाला, वी वुड लाइक टू टेल यू कि ये फर्नीचर हम आपको सेटअप करके दे सकते हैं विद इन 8 to 10 days पीरियड ऑफ टाइम। इफ यू अलाउ अस, we can give you a setup of this furniture within 8 to 10 days stand up to start your business. आप 15 दिन के अंदर अपना शोरूम स्टार्ट कर सकते हो फॉर्मेलिटीज करके। आप फ्रेंचाइज इंडिया से बात करके इस चीज को सीरियसली लीजिए। यदि आपको फ्रेंचाइजी शुरू करना है तो ये फर्नीचर का टेंशन आपको नहीं लेना है, हम आपको 10 से 15 दिन के बीच में ये पूरा सेटअप खड़ा करके देंगे और हमारी टीम है इसके लिए, वो स्पेशली आपके साइजेस लेगी, आपसे कनेक्ट होगी और 15 दिन में आपको शोरूम रन करने के लिए हम आपको दे सकते हैं, चलाने के लिए, और सुंदर फर्नीचर बनता है। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन, स्पेशलिटी, सीजनल एंड इम्पल्स। डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट स्टोर नो फॉर्म्स 40% ऑफ सेल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, स्पेशलिटी नट्स एंड बेरीज। ड्राई फ्रूट्स का जो आज हम हमारी जो महावीर मेवा वाला की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का सेल इसमें 40% समझते हैं, जो मेन आइटम्स ड्राई फ्रूट्स के होते हैं, कैशूज, किशमिश, बादाम, पिस्ता, आलमंड्स एटसेट्रा। देन नट्स एंड बेरीज, it's also a 30% share of the business products. Then 20% dates, corporate gift solutions are covered in this.
Then impulses, low price, impulse purchase helps to improve basket size from 10% of sales. Wholesalers, कभी कभी शादियों के ऑर्डर्स भी मिलते हैं, दिवाली के ऑर्डर्स मिलते हैं, ये सारी चीजें साल भर चलती रहती है. ड्राई फ्रूट्स कोई एक पर्टिकुलरली सीजनल बिजनेस नहीं हो गया है. ड्राई फ्रूट्स ये 12 महीनों का बिजनेस है, ये ईयरली चलता है. नेक्स्ट, सस्टेनेबल वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, अवेलेबिलिटी. वाइड SKU मिक्स इज मेड अवेलेबल सुटेबल फॉर EBO. मैंने बताया आपको कि काजू में आपको 6 वैरायटी मिलेंगी, 7 वैरायटी मिलेंगी, बादाम में 4 वैरायटी मिलेगी. तो ऐसे हर प्रोडक्ट के SKU मिक्सेस अवेलेबिलिटी है और कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबिलिटी. अब आप फिक्स लेने जाओगे, फिक्स आपको 1000 रुपए किलो भी मिलेगा, 2200 रुपए किलो भी मिलेगा, बीच में 1600 रुपए भी मिलेगा. ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, देयर साइजेस, देयर कलर्स, सब चीजें उसमें मायने रखती है. वो उसका टेस्ट भी उस प्रकार से आता है. ज्यादा पैसा लगेगा जेब से तो ज्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा. प्लेस, देन एक्सेसिबल टू रिटेल प्रेजेंस. हमारे स्टोर्स हम ऐसी जगह खोलना चाहते हैं कि जहाँ पे कस्टमर्स को नजदीकी एरिया में उनको जल्दी से जल्दी फिजिबिलिटी हो पहुंचने की. तो ऐसी जगह पे हम लोग जहाँ रेसिडेंशियल एरियाज है, मार्केट एरियाज है, जहाँ कस्टमर्स वॉक इन आते हैं, वहाँ पे ये स्टोर्स ज्यादा इफेक्टिव है. एक्सेप्टेबल फॉर्मेट डिजाइन टू इंश्योर एक्सेप्टेबल कस्टमर कन्वीनियंस. जब इस जैसे मैंने अभी वो इंटीरियर का आपको डिजाइन बताया, तो वो इतना फॉर्मेट सोबरली डिजाइन किया हुआ है कि कोई ऐसा ज्यादा उसमें गॉडीपन नहीं है. सिर्फ उसमें माल का डिस्प्ले कैसे हो सकता है, हाउ द गुड्स आर डिस्प्लेड इन द शोरूम, दैट इज फोकस्ड ऑन दैट. हम लोग वो फर्नीचर पे फोकस नहीं कर रहे, हम लोग अपने माल की अवेलेबिलिटी कस्टमर्स को दिखाने के लिए वो फोकस करते हैं. प्रमोशन, प्रोसेस एंड पीपल, कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्लान्स related to promotion, we are always coming with new ideas. कॉर्पोरेट मार्केटिंग प्लान्स के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उनको मैसेजेस, उनको व्हाट्सएप्स, उनको मेल्स, उनको ब्रोशर्स भेजना. देन आवर लॉन्चिंग ऑफ द न्यू आइटम्स, उनके मैसेजेस हम लोग डेली हमारा डेली बेसिस पे चलता है ये. देन प्रोसेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, विजुअल मर्केंडाइज, CRM, पीपल का जो ट्रेनिंग है, प्रोडक्ट का कस्टमर का इंटरेक्शन है. नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो हम लोग शोरूम पे कस्टमर से भी डील करते हैं, उससे बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने ले गया था, उसको कैसा, क्या आपका फीडबैक है. सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी हम उनको, हमारे जो कस्टमर्स है या हमारे फ्रेंचाइज है, उनको भी देते हैं. नेक्स्ट, कैन दिस रिटेल स्टोर बी फ्रेंचाइज्ड. अब महावीर मेवा वाला फ्रेंचाइज कैसे हो सकता है. अपॉर्चुनिटी टू रोल आउट EBOs इन विदर्भा रीजन, T2 and Tier 3 मार्केट्स. स्ट्रेंथ्स, ये शोरूम कहाँ खुल सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं. इसकी मजबूती कहाँ है, इसका स्ट्रेंथ कहाँ है. वाइड रेंज ऑफ SKU मिक्स है, एग्रेसिव प्राइस पॉइंट्स, 7 रनिंग शोरूम्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. आज हमारे शोरूम चल रहे हैं, वो आपके लिए एक जिंदा प्रूफ है. यू कैन गो देयर लाइव. कंप्लीट पैक्ड प्रोडक्ट्स, ईज ऑफ ऑपरेशंस, ये सब हमने बात की अभी कि हमारा पूरा पैकेजिंग यूनिट है पूरा, हम लोग खुला माल नहीं बेचते हैं. वेल नोन ब्रांड नेम इन द टारगेट मार्केट. टुडे इन विदर्भा वी आर अ रेप्यूटेड ड्राई फ्रूट सेलर. इवन though we are in Vidarbha, but our products are sold to Bombay also, in different military canteens of our covering areas. We are also available there. Then opportunity to the franchises, retail industry moving from organized specialized sector. आप स्पेशली एक एक्सक्लूसिव बिजनेस में एंटर करने जा रहे हो. फ्रेंचाइजीज को मैं बोलूंगा जो नए अपॉइंट होना चाहते हैं कि स्पेशली आपके लिए एक स्पेशल बिजनेस है ये. ग्रोइंग कंज्यूमर डिमांड फॉर नट्स एंड हेल्थ सप्लीमेंट. आप लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजों का बिजनेस कर रहे हो जो आपको कभी भी गलत फीलिंग नहीं देगा. इवॉल्विंग कैटेगरी बियॉन्ड गिफ्टिंग सोल्यूशन. आज लोगों को गिफ्टिंग देने में लोग ढूंढते हैं कि मैं क्या गिफ्ट दूं, तो आपके पास में नंबर ऑफ वेराइटीज विथ हेल्थ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है. इन Tier 2 Tier 3 मार्केट्स ओपन फॉर सच एक्साइटिंग कंसेप्ट्स इन EBO फॉर्मेट. आज ये हर प्रकार के मार्केट में ये फ्रेंचाइजीज जा सकती है, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो. थ्रेट्स, existing and emerging offline competition, e-commerce and aggregator players. existing and emerging offline competition की हम बात करेंगे तो ये तो बिजनेस है, ये तो चलना है. जब तक कंपटीशन नहीं रहेंगी हम काम भी नहीं कर पाएंगे. ई-कॉमर्स की बात करें तो हम अपना खुद का वेबसाइट है. खुद का वेबसाइट होने के कारण लोग अपने भी कस्टमर्स हमारे आज ऑनलाइन आते हैं. तो समझ लो अभी हम पुणे में हमको शोरूम फ्रेंचाइजीज देते हैं
और पुणे से हमको कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो वी विल पास ऑन दैट ऑर्डर टू द पुणे फ्रेंचाइजी, वो उसका जो भी है वो उसका बिलिंग में जाएगा वो। तो ऑनलाइन भी हम लोग अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे 12 पॉइंट्स को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, इवैल्यूएटिंग प्रोटीन। इसको यस सर। हाँ, इसको करके क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है, ओके, अगर हम फाइनेंशियल मॉडल पे आ जाएं तो यस वी इसे विल कम टू द बहुत फाइनेंशियल मॉडल, दिस ऑल वी हैव हाँ डिस्कस्ड हियर। हाँ जी, हाँ जी, आपसे यस दिस वन नेक्स्ट। या अब हम काफी बातें कर चुके हैं। मेन इसका जो पीछे का सिनेरियो है, फाइनेंशियल समरी फॉर यूनिट सेटअप शॉप फॉर्मेट, एक 150 से 200 स्क्वायर फीट की जो शोरूम की हम बात करते हैं फ्रेंचाइजीज की, इसके टोटल इन्वेस्टमेंट पे हम 7.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, एक फ्रेंचाइजीज पे इन्वेस्ट करेगा। 7.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में से 2.25 लाख उसके इंटीरियर्स फर्नीचर्स पे, आउटफिट फिट आउट्स पे खर्च होंगे। इक्विपमेंट्स 1 लाख रुपीस में जाएंगे, ताकि इसके जो भी इक्विपमेंट्स इस बिजनेस में लगते हैं, इतना नहीं लगता है 1 लाख रुपया, लेकिन जो भी लगता है वो कम ही लगेगा इससे। वेइंग मशीन्स है, कैसी और बाकी चीजें, सीसीटीवीज है, सीलिंग मशीन है। इनिशियल स्टॉक नियर अबाउट 2.75 लाख। इस 7.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में करीबन 2.25 से 3 लाख रुपए का स्टॉक उसके शोरूम में रहेगा। अब 3.5 लाख, 7.5 में से 3 लाख स्टॉक चला गया, बचा 3.5 लाख। 3.5 लाख में से 2.25 लाख चला गया फर्नीचर, 1 लाख चला गया इक्विपमेंट में हम ज्यादा पकड़ रहे हैं। देन अगेन इन प्री ओपनिंग एक्सपेंसेस हम 50,000 रुपए पकड़ते हैं, ताकि शोरूम के ओपनिंग के दिन जो खर्चे लगते हैं, ठीक है, उसका बिजनेस भी मिलता है उस दिन। देन फ्रेंचाइजी फीस इसमें हम लोग 1 लाख रुपीज ले रहे हैं। इन दिस फ्रेंचाइजी फीस 1 लाख रुपीज, आई वुड गौरव जी टेल यू कि यदि मई महीने में कोई बिजनेस का फ्रेंचाइजीज हमारी लेता है, इन स्पेशल ऑफर फ्रॉम महावीर मेवा वाला, वी आर गिविंग 25% ऑफर in this pandemic period to young franchisees to come forward, especially हम 25% का फ्रेंचाइजी फीस पे ऑफर देना चाहेंगे, ताकि लोग इसमें आगे बढ़े। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स, 1 करोड़ रुपए का एनुअल सेल आप 7.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 3 लाख के स्टॉक के साथ में रेगुलरली कर सकते हो। 1 साल में आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो किसी से, हमसे या गौरव जी से या टीम से। ग्रॉस मार्जिन इसमें 20% का मार्जिन है। 1 करोड़ पे आपको 20% का मार्जिन आता है, यानी 20 लाख रुपया साल का हो गया। इसका नेट मार्जिन हम 7 to 9% पकड़ते हैं, बट ये नेट मार्जिन इट गोस अप टू 13 to 14%। इसमें अलग अलग फीचर्स है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, जो ये 13 to 14% पे कैसा आ सकता है। और अगेन हम बात करते हैं तो इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% 12 से 15 महीने में हो सकता है। इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है, और ये सक्सेसफुल है, ये हो सकता है। जो इंटरेस्टेड फ्रेंचाइजीज है वो बात कर सकते हैं। सप्लाई, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, सब ये तो डिस्कस कर चुके हैं। अब आप हाँ जी, मुझसे क्या पूछ सकते, मत पूछिए। हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। हम स्पेसिफिकली इनको रिक्वेस्ट करके लाए हैं इस टाइमों के अंदर, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप एक सक्सेसफुल ब्रांड जो 32 इयर्स से एग्जिस्टेंस में है, बिजनेस विच ऑलरेडी इज रनिंग 7 शोरूम्स, तो 7 शोरूम चल रहे हैं। इसमें 2 बिजनेस हैं आपके लिए। एक होता है रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस की कस्टमर आया और अपने लिए लेके गया सेल्फ कंजम्पशन के लिए। और दूसरा बहुत बड़ा बिजनेस होता है गिफ्टिंग। गिफ्टिंग के अंदर 2 बिजनेस हैं, एक इंडिविजुअल और एक कॉर्पोरेट। एक कॉर्पोरेट लेता है, एक इंडिविजुअल अपने लिए लेता है, या अपने घर में जो फंक्शन हो, मैरिजेस हो या कुछ हो। आज सारे ओकेजन्स के ऊपर लोग ड्राई फ्रूट को ज्यादा प्रेफर करते हैं विद इन स्वीट्स। बहुत बड़ी रेंज है, क्योंकि ये अब इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर चुके हैं, तो इनके प्राइस और इनकी सोर्सिंग मार्केट से बेटर है। सो मैं और समराइज करूं, सिर्फ आपको एनीथिंग 150 to 300 स्क्वायर फीट की शॉप लेनी है, जिसका टोटल इंटीरियर खर्चा जो है वो 2,25,000 है। 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, जिसके अंदर कोई रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है हमें, जैसे नहीं, ऐसा कोई नहीं पड़ती है। हमारे पास कोई रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, सब एम्बिएंट टेम्परेचर पे प्रोडक्ट है। बट फिर भी आपको अगर कोई इक्विपमेंट डालना हो या बेसिक एयर कंडीशनिंग करानी हो, और 1 लाख रुपया जो फ्रेंचाइज फीस है उसमें से भी 25% डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप मई में फाइनल करेंगे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास अपना कोई शोरूम भी है
उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखिए, उन्होंने तो रिटर्न ऑफ कैपिटल जो आपको दी है वो टोटल 7.5 लाख पे दी है, लेकिन 7.5 लाख में से एक्चुअली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 4 लाख रुपीज है और बाकी आपका वर्किंग कैपिटल है। स्टॉक इज योर वर्किंग कैपिटल, स्टॉक में तो 1 रुपया भी घट नहीं सकता है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, जिसपे आपको आपको रिटर्न चाहिए 4 लाख रुपया, बाकी तो वर्किंग कैपिटल है जो रोटेट होगी। तो 4 लाख रुपए की रिटर्न अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी 4 से 5 महीनों में भी अपनी आराम से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये बिजनेस आपके लिए परमानेंट है। ऐसे बिजनेसेस इन टाइमों के अंदर पर्टिकुलरली बहुत अच्छे हैं। ग्लोबली ड्राई फ्रूट्स की हमेशा स्पेशलाइज्ड शॉप्स होती हैं। इंडिया में क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड शॉप्स नहीं थी, तो बहुत सारा ड्राई फ्रूट जो है वो किराना और उसमें बिकता है, जिसमें ना वो हाइजीन फैक्टर है, ना ही कोई बेसिक स्ट्रक्चर है। सो देयर इज एज ए गुड अपॉर्चुनिटी। विमल जी पूछ रहे हैं कि हमारे कंसल्टेंट हैं कि ये टोटल डिडक्शन 25% की है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे। ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे नहीं है विमल, ये सिर्फ फ्रेंचाइज फीस पे। या फ्रेंचाइजी फीस में 25,000 पे आपको अगर बच जाएगा, जो ही आप एक्चुअली देते हैं, बाकी तो आपका अपना स्टॉक है और अपनी शॉप पे लगाते हैं। अगर आप कुछ कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी तो आपको स्टॉक मिल रहा है या आपको वो मिल रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। मैं 2 क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद मैं सोनिया जी को बोलूंगा कि सोनिया जी कुछ क्वेश्चन ऑडियंस से लेंगी, और अगर किसी भी ऑडियंस का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा टाइम रन कर रहा है, तो क्विकली जाके पूछिए। वी ऑन योर बिहाफ वी विल टेक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहता है कि जब कोई आपके साथ स्टोर शुरू करेगा, और ये आपकी वरी रहती होगी कि भाई वो क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है, प्रोडक्ट Yes. बाहर से भी लेने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि उनको क्वालिटी का पता नहीं होता है, तो कभी कभी वो कंपेयर करते हैं कि नहीं, मुझे तो ये बादाम यहाँ से इतने मिल जाएगा या वहां से वो मिल जाएगा। तो काफी रिटेलर्स इस बात को कंपेयर करते हैं। तो उसको आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे उनको इंश्योर करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट आपसे ले रहे हैं वो उनको मार्केट से या किसी और से कभी भी उस प्राइस पे मिल नहीं पाएगा, उस क्वालिटी का प्राइस। क्योंकि कभी कभी Yes. प्राइस तो yes. यू नो इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो एक तो ये क्वेश्चन है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। और दूसरा समीर जी पूछ रहे हैं कि आपका कोई कंपटीशन जो आप मार्केट में बात करना चाहें, कि भाई कोई ऐसा कंपटीशन हो महाराष्ट्र के अंदर जो है, या आप ही अकेले स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर हैं इन द मार्केट। सो Today in Maharashtra, we are the alone dry fruit sellers in packaging. हमारी कोई कंपटीशन नहीं है किसी से। और हमने हमारी 30 सालों की ड्राई फ्रूट्स की बिजनेस की लाइफ में कई बार देखा कि कम से कम इसमें 10 से 12 लोग आए और वापस रिटर्न हो गए। They have stopped their businesses and they have to go back. Why? Because आज क्या हो गया, महावीर मेवा वाला का एक सेटअप तैयार हो गया। आज महावीर मेवा वाला के कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, उनकी क्वालिटी लोग खाना पसंद कर रहे हैं, वो उनको रेगुलरली मिल रही है। नया आदमी आकर इस बिजनेस को डेवलप करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो क्वालिटी लाएगा, खिलाएगा, उसके आधे कस्टमर्स उसके उसमें जाएंगे, नए कस्टमर्स कब तक जोड़ेंगे, जब तक वो माल की जो पेरिशेबिलिटी होती है वो खराब हो जाती है। इसलिए ड्राई फ्रूट्स बिजनेस बड़ा रिस्की बिजनेस है। यदि यहाँ माल का सेल नहीं हो रहा है तो फिर वो बड़ी दिक्कत वाला इशू है। इसलिए कंपटीशन यहाँ पे हमको तो नहीं है कुछ भी। हम रिटेल की बात कर रहे हैं, नॉट होलसेलर्स। वेरी वेरी गुड। सो कोई कंपटीशन स्पेशलाइज नहीं है, और कोई भी स्पेशलाइज ऑपरेटर नहीं है, और कोई भी पैकेज्ड प्रोडक्ट नहीं दे रहा, और किसी के पास पूरी रेंज नहीं है। और गौरव जी एक बात और बताऊंगा कि हमारे जो पाउचेस होते हैं, हम उसकी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की दिखे उसमें विंडो रखते हैं। आज कुछ प्रोडक्ट, कुछ ब्रांड्स ऐसे भी है, जैसे रोस्टा है, बहुत सारे ब्रांड्स दिल्ली के भी है, आपके तुलसी है। तो ये सारे पाउचेस जो होते हैं ये चारों तरफ से पैक होते हैं, इसमें प्रोडक्ट अंदर का कैसा है वो दिख नहीं रहा है। बट हमारा खुद का ऐसा सोचना है कि कस्टमर माल लेते वक्त उसको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। तो हमारी एक पूरी साइट की 25% विंडो ओपन रहती है, ताकि उसमें से उसको झलक तो दिखी जाती है कि माल कैसा है, साइज कैसा है, फ्रेश है कि नहीं है। ये हमारा एक स्पेशल फीचर है, हम लोग जानबूझ के इसको विंडो रखते हैं कि कस्टमर्स को माल दिखना चाहिए कि क्या ले जा रहा है वो। Visibility of a product is very very important, and also it comes with your brand assurance also. क्योंकि आपका भी ब्रांड इतने सालों से और इतने देर से सर्विस कर रहा है, वो लेते वक्त उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई मैं सही चीज ले आ रहा हूँ घर पे। जी जी। So very good. So it's a great opportunity. It is a great opportunity. If you want to apply for this opportunity, you can reach out to us and we will be more than happy to do that. संजय जैन एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेरिशेबिलिटी के ऊपर। तो इसकी पेरिशेबिलिटी क्या रहती है प्रोडक्ट की, और कैसे आप इंश्योर करते हैं कि वो उसकी बिफोर इट
उसमें आए, पेरिशेबल होने लगे, उससे पहले पहले हम स्टॉक क्लियरेंस करवा पाए। इसका एक फीचर ये भी है कि जो पेरिशेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी 3 महीने की गारंटी दे रहे हैं। हम लोग जब ड्राई फ्रूट्स परचेस करते हैं तो हम लोग पूरे जो आइटम्स होते हैं कोल्ड स्टोरेज से हमारे पास में आते हैं। कोल्ड स्टोरेज से आने के बाद में इसका हम सॉर्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं, छटाई करते हैं और पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद में इसमें हम ऑक्सीजन एब्जॉर्बर का जो एक पाउच आता है वो हम डालते हैं, जिससे उसकी लाइफ 3 महीने तक की मेंटेन होती है। 3 महीने के बाद में वो थोड़ा थोड़ा रॉ होने लगता है, लेकिन वो 3 महीने के पीरियड के बाद में हम वो स्टोर में रखेंगे ही नहीं उसको। वो 3 महीने के बाद का जो डेट आएगा उसमें वो माल वहां से उठा लिया जाएगा, क्योंकि वो ऐसा रहता ही नहीं है कि माल बचता है, कुछ बचा भी मिनिमम पैकेट्स तो हम वहां से उठा लेते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं, टोटली उसको एंड टू एंड उसको रिप्लेसमेंट मिलता है। Very useful, very very useful. So now over to you for your question. Sure. I'll take some questions. I think overall on the business we have covered every question. एक जो मैं लेना चाहती हूँ मार्केट्स के ऊपर है, कौन सी मार्केट्स हैं जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं अपना रोल आउट? दैट वुड बी एन इम्पोर्टेंट थिंग टू बी हाइलाइटेड टू एवरीबॉडी। मैडम देखिए, इसके लिए महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे है, औरंगाबाद है, कनेक्टेड सिटीज विद दैट अहमदनगर है, इवन इन बॉम्बे यू कैन डू, बॉम्बे इज अ वेरी गुड मार्केट। बॉम्बे में भी आज स्पेशलाइज शोरूम्स नहीं है, बॉम्बे बड़ा मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स बिकता बहुत है, लेकिन स्पेशलाइज 100 स्क्वायर फीट शोरूम्स ऐसे ड्राई फ्रूट्स के नहीं है। देयर इज अ मेजर, दिस इज द मेजर सिटी बॉम्बे, यहाँ पे तुम सैकड़ों शोरूम खोल सकते हो, इतनी बड़ी स्केल है वहाँ पे, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी एरिया है, इतनी पीपल्स है, इतनी पब्लिक है कि वहाँ पे तुम नंबर ऑफ शोरूम्स खोल सकते हो। मेरे दिमाग में तो ये कई दिनों से आ रहा है कि बॉम्बे में ही अकेले में शुरू किया जाए ये काम। नहीं, बहुत ठीक बात कह रहे हो। गौरव जी, वहाँ पे 10 रुपए का वड़ा पाव होता है, वो उसके शोरूम से छोटे छोटे, और लाइन से बिकता है, वो शाम को 25,000 रुपए धंधा करके ले जाता है घर पे। करेक्ट, मैंने सर्वे किया है वहाँ का। ये तो उतने छोटे से शॉप में भी ड्राई फ्रूट का शोरूम चल सकता है, 50 स्क्वायर फीट में भी ड्राई फ्रूट का शोरूम चल सकता है। करेक्ट। और वहां पे तो अभी इसका तो चलो छोड़ो, एक सिंगल वेफर के भी बहुत शोरूम होते हैं। हाँ, सिंगल वेफर के है ना, हॉट चिप्स है, ये है। 50 स्क्वायर फीट के शोरूम में ड्राई फ्रूट का शोरूम चलाने की ताकत है हमारी। उसमें उसको दिन भर का माल बिक जाता है, उसका उतना सेकंड उसको फ्रेश माल आएगा, उसको उतना सेटअप हम बॉम्बे में करके देंगे उसको। आप स्पेशली गौरव जी इसके लिए बॉम्बे के लिए एक किसी को बंदे को अपॉइंट करो और बॉम्बे का सर्वे करवाओ, तो आपको वहाँ पे 100 शोरूम खुल सकते हैं, 100 शोरूम। करेक्ट, हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है। बॉम्बे बहुत अच्छी मार्केट है, आप जिधर जाओगे उधर पब्लिक है, जिधर जाओगे उधर दुकान है वहाँ पे। करेक्ट। और आज वो चीज रह नहीं गई कि काजू कौन खा रहा है और कौन नहीं खा रहा है। हमारे कस्टमर भी, हमारे दुकान पे भी हम जब खड़े रहते हैं शोरूम में, तो हम वॉच करते रहते हैं कि कस्टमर कैसे आ रहा है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला भी आता है और वो 500 रुपए का काजू लेके जाता है। काफी चीजें इसमें है। आप बॉम्बे भी फोकस करेंगे तो अपने को बहुत अच्छा लगेगा सर। नहीं, आपको एक साथ में बिजनेस मिलेगा हमको वहां से। नहीं, पूरा बॉम्बे पे फोकस करेंगे। एक अलग आपका वेबिनार बॉम्बे के सारे इन्वेस्टर्स को लाके करेंगे। हाँ, बॉम्बे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मार्केट है। मेरी इस पे 2-3 जगह चर्चा भी हुई है, लेकिन हमें नहीं जा पाया आगे उसमें। एक दो लोकेशंस में लूंगी। सो महाराष्ट्र भी अंडरस्टैंड ये फोकस है हमारे लिए। और दूसरा एक संजय जैन जी पूछ रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए कि एक्सपोर्ट के लिए अभी हम लोग नहीं तैयार है मैडम। हम लोगों को अभी पहले हमारा घर देखना है, हम यही काम करेंगे अभी। श्योर। अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम स्वप्निल जी हैं, ये रायपुर के लिए पूछना चाहते हैं कि रायपुर आपके रोल आउट में अगर है तो वो इंटरेस्टेड है बात करने में। बिल्कुल इंटरेस्टेड है रायपुर, वी कैन डू इट वेरी अर्ली। ठीक है, स्वप्निल जी, come back to you and we'll set up a call with Atul ji in this week। और I think we've covered। एक क्वेश्चन और मैं लूंगी जो मिस्टर समीर से है। ये पूछना चाहते हैं आपकी पैकेजिंग और साइजेस हमारे क्या क्या है। So that's what he wanted to know। That's the last question। पैकेजिंग हमारी 100 ग्राम्स है, 250 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स है, 3 वेराइटीज है इसमें, और 1 kg है। 100 ग्राम का भी कैशूज उसमें मिलेगा उसको, कस्टमर को वहाँ पे 250 ग्राम का मिलेगा और आधा किलो का मिलेगा। 1 किलो का किसी को चाहिए तो वो आधा किलो के 2 उसको दे सकता है। और सारे चीजों की एक खासियत ये है कि आप 100 ग्राम्स भी ले रहे हो तो रेट वही लग रहा है उसको, 250 ग्राम भी ले रहे हैं तो उसको वही रेट लग रहा है, उसमें चेंज नहीं है रेट्स में। 1000 रुपए किलो काजू है तो 100 रुपए का ही 100 ग्राम मिलेगा, 250 रुपए का 250 ग्राम मिलेगा, और आधा किलो 500 रुपए का मिलेगा। ठीक है अतुल जी। गुड़गांव हरियाणा में पड़ता है, यहाँ पे हम देखेंगे कोई ऑप्शंस खोलने के अभी फ्रेंचाइजीज नहीं? हाँ, खोल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अच्छा, एनीवेयर इन द कंट्री वी आर ओपन, बिकॉज़ लास्ट टाइम आपने कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स बोले थे जहाँ पे आप एंटर करना चाहते थे। एनीवेयर इन द कंट्री, आई थिंक कि जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी हो हमको,
विदिन 24 आवर्स हमारा स्टॉक पहुंच जाना चाहिए, वो हम लोकेशंस देखेंगे। ठीक है दीपक जी, सो वी आर ओपन फॉर गुड़गांव आल्सो एंड आई विल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, हम अपनी डिटेल्स ऑलरेडी डाल चुके हैं। आवर हॉटलाइन नंबर व्हिच इज 9717683838, इस नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड वी हैव आल्सो नोटेड ऑल द कोऑर्डिनेट्स दैट यू हैव शेयर्ड विद अस, इंक्लूडिंग योर इंटरेस्ट ऑफ लोकेशन, योर ईमेल आईडीज, फोन नंबर, जो भी आपने शेयर किया है। And between today and the next maybe 3 to 4 days, we'll start lining up your call with the team. And Kolhapur ke liye bhi open hai, all these locations which I'm seeing as we close, and we'll reach out to everybody who sent their inquiry. And Atul ji, कोई भी दिन आप इस हफ्ते में आप बताना चाहेंगे जहाँ पे हम ये कॉल्स ले सकते हैं? You can take it. I am 24/7 available. अतुल जी का सुबह मुझे मैसेज आता है, हर रोज सुबह मैसेज करते हैं। चंदे साहब, हम 24/7 वर्किंग करने वाले लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी यू कैन। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली गौरव जी, वी आर आल्सो डीलिंग इन मीडिया फील्ड। आई नो तभी आपका सुबह आता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर वी क्लोज, कोई भी मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? एंड मैं मैडम व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। 4 से 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में इतना अच्छा बिजनेस नहीं मिल पाएगा। और मैं तो मेरा मूड बन गया, मेरी फीलिंग हो गई आज की, इसलिए मैं 25% गौरव जी और आपकी उपस्थिति में डिक्लेयर कर दिया कि चलो यार कुछ तो काम बने ना। और यंग टीम इसमें आना चाहिए, अच्छे बिजनेस से जुड़ना चाहिए, अच्छे लोगों से जुड़ना चाहिए। वो हमारा मैडम पैसा कमाना गौरव भाई उद्देश्य नहीं है। करेक्ट। एक शो चल रहा है, शो को वेरी सक्सेसफुली चलाना है। पैसा कमाना था, भगवान ने दे दिया, पैसा कमा चुके हैं। जो शो है उसको अच्छी से रन करना है विथ ऑल एथिक्स एंड ऑल प्रिंसिपल्स। Look forward, Atul ji. Thank you very much. Thanks Yes, for coming. sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sonia ma'am. Thank you so much. Thank you. And friends, we put a hotline number हमने डाला है। आपने कुछ अपने email IDs and phone numbers दिए, हमने कैप्चर की आपकी locations के साथ। I will also write personally to everyone who's asked and requested for a call. And इस हफ्ते में अतुल जी से हम टाइम लेके आप सबका एक ब्लॉक करेंगे कॉल। आप मीटिंग अगर लोकल है वो कर सकते हैं, नहीं तो हम कॉल सबके साथ अलाइन करेंगे। And we also have some more details to be shared with you. And I will request Shruti if you can put the slide for our webinars, and we can announce to all our participants. So friends, we have our event for the day. So we have, I'll start with the hotline number. This is 717-683838, जो हमने mention किया है. I've also put that in the chat box. And these are the Facebook, LinkedIn, Twitter, and Instagram URLs you can reach out to for any information on opportunities that we keep bringing to you, including the recording of this webinar also, जो available है हमारे Facebook page Franchise India. Next slide, please. And this is a LinkedIn ID. हमें भी reach out कर सकते हैं in the URLs पे. Next slide, please. So ये हमारा 30 days, 30 cities है जो हम cover कर रहे हैं, and we have been doing this for last I think 9 odd days. We have covered the show, and today we are covering Kochi chapter. ये 7 बजे हमारा हर रोज ये एक इवेंट होता है जो हर शाम 7 बजे हम करते हैं, जहाँ पे उस लोकेशन में जो ब्रांड्स पेनिट्रेट करना चाहते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, वो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सबके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट्रेशन है हमारे हॉटलाइन नंबर पे, या फेसबुक पेज ऑफ फ्रेंचाइज इंडिया ब्रांड्स के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन लिंक है, आप उस पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। And this is the brand that we bring to you tomorrow. This is a company from East India. It's a brand which is by the name of Puppets, and it is a retail store of toys which is currently operating in East India with an investment of 20 odd lakhs, an area of 500 square feet. So friends, we look forward to your feedback, and also register yourself for tomorrow's webinar. Thank you. Stay safe. Have a great day ahead. Thank you very much. Thanks for joining in. Thank you.